Hey everyone, welcome back to the IC Travelers. Good morning here from Dubai at the IC Travelers. Today we'll be exploring um, Ibn Battuta Mall, which is a local mall here in Dubai, and then we'll go for Gold Souk, Perfume Souk, and we'll buy a few perfumes also. We'll see if we can buy gold. We're thinking of having a earring stud as a purchase. So let's see, and we'll also see if when we'll purchase the perfumes and all. So we know that whenever the purchase amount is more than 250 dirham, then we get a VAT refund receipt. So we'll see all that, and whatever information we get, we'll try to share it with you. And yeah, today in like all the episodes, we will also come to know how to reach to these places, and we are also going for Dhao cruise also by the end of the night. So you will know how to reach to these places, how much time to spend, how to like manage the itinerary. So you'll get everything along with the budget of the day. And right now it's 11:15, so we are a little late now. We had to go out by 10:30, 11 max, but we had a slow morning. We had our breakfast, the complimentary breakfast that the hotel provides. So let's not take much time now. Let's leave. आज दुबई में हम लोगों का 7 नंबर डे है। तो ऑलरेडी हम लोग का रिचार्ज ख़त्म हो चुका है मोबाइल का, तो इसलिए हम लोग डीयू के स्टोर पे गए, जो कि हमारे यूनियन मेट्रो स्टेशन पे ही है। वहाँ पे जाके हम लोगों ने रिचार्ज करवाया और उसके बाद हम लोग निकले अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए। هي المركز المالي. The next station is Financial Center. तो अभी टाइम हो रहा है 12:45। हम लोग निकले थे 11:30 को। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम लोग को 1.5 घंटा से ज़्यादा ही लग गया। लेकिन अभी है हम लोग दुबई में, तो यहाँ पे सब कुछ लार्जेस्ट, बिगेस्ट, टॉलेस्ट देखना तो बनता है। फ़िलहाल हम लोग जिस मॉल पे है, ये मॉल लार्जेस्ट थीम मॉल वर्ल्ड के अंदर पे आता है, मतलब नंबर 1 रैंक पे ये है। तो ये इस मॉल पे जब हम लोग फर्स्ट एंटर किए, तो हम लोग को लगा नहीं कि हम लोग मॉल पे एंटर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई पैलेस पे एंटर कर रहे हैं। तो इस मॉल का नाम है द इबन बतूता मॉल। ये मॉल हमारे हम लोग जहाँ पे ठहरे वहाँ से काफ़ी दूर है, थोड़ा आउटस्कर्ट्स एरिया टाइप में है। लेकिन जो मॉल है, जो सराउंडिंग है, जो झूमर है, जो ऊपर का टोम है, वो सब कुछ देखने में अलग लेवल का है, क्योंकि वो उन लोगों ने पूरा प्रॉपर अपने अरबिक थीम में ही बनाया है। तो हम लोग अभी तक सब कुछ हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया, पहले सब कुछ देख लेते और साथ में आप लोगों को भी दिखाते हैं, चलिए। This mall is named after Ibn Battuta, a 14th century Moroccan traveler, explorer, and scholar. The mall is divided with 6 courts, which is China, India, Persia, Egypt, Tunisia, and Andalusia. The mall features shops from many retailers, generally ranging from affordable to mid-range brands. We found a brand for less retail outlet here as well, where you get branded products at discounts. We have already spoken about brand for less outlet in the last episode.
We will not shop here as we will visit Outlet Village in the episodes to come. आज हम लोग किसी मॉल में विद व्यू लंच करने वाले हैं, पर मैगडी नहीं, आज हम लोग खाने वाले हैं KFC बार। तो ये रहा मेरा वेटर जो असल सैनिटाइज करी है हाथखन ताते सैनिटाइजर আছে তো मन काने लय निबा हाँ। तो मुझे जब सैनिटाइजर भी चाहिए मुझे बोल देना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉप तक जाने के लिए हमने इबन बतूता मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 से ही मेट्रो लिया टिल बुर्जुमान मेट्रो स्टेशन तक। फिर हमने प्लेटफॉर्म 3 से मेट्रो लिया टिल अलरस मेट्रो स्टेशन तक। और ये मेट्रो स्टेशन खुद में ही एक टूरिस्टी स्पॉट जैसा है। शायद ये नया बना हो, लेकिन इतना क्लीन और खूबसूरत मेट्रो स्टेशन हमने भी फर्स्ट टाइम ही देखा है। Once out of the metro station, it was merely a 8 to 10 minute walk through Spice Market or Spice Souk till the Gol Souk. Alright, so finally we have started our tour in the old Dubai, and we'll start our tour with the souks. Souks means market, and the first stop is Gol Souk, and then we'll go for perfume souk because that's how the route is easier. So right now we are in the Gol Souk. It's basically gold market. Any kind of gold chains, gold. If you wanna purchase gold for your back to take it back to your home, then you can purchase it here. We'll try to locate any zero making charges shop. We'll try to show you so that it helps you when you come if you want to buy for some investment. And just now we saw the world's heaviest gold ring. It was quite a fascinating thing to see. So anyway, let's see what all we can explore, and we'll show you as we go. अगर आप गोल्ड शॉपिंग करने के हिसाब से यहाँ पे आते हो तो आप इसे अपना लैंडमार्क हिसाब से भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको जीरो मेकिंग चार्ज में भी मिल जाएगा। लेकिन गोल्ड शॉपिंग करने के लिए आपको टाइम और पेशेंस दोनों ही चाहिए। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, यहाँ हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। With a specific perfume shop in our mind, we walked through the perfume souk. While walking, we first encountered the very social media viral perfume shop of Yusuf Bhai. But we did not go inside thinking it might be expensive due to the hype and demand, and we will get the same in other shops. The next thing we encountered is this preparation, which was so organized as you can see, and we liked the setting. And finally, we reached our spot. In this shop, you can buy branded perfumes as well. But what we did is we asked them to create the same fragrance in ADP. And if you like wood perfumes like me, then you are at a luck. It is interesting to see the process as well. The quality of the whole bottle to the fragrance is top notch. We have already emptied one of the bottles and we did not get any trouble. We ended up purchasing 4 bottles, some itters, and got small bottles of itter as a gift or souvenir for our family back at home as well. But let me remind you that if you only wish to buy branded perfumes,
at discounted price, you can explore some other shops as well. अभी हम लोगों ने परफ्यूम शॉपिंग भरपूर कर ली है। शॉपकीपर बहुत अच्छे थे, बहुत पोलाइट थे। उन्होंने समझा कितना हम लोग का बजट है, उसके हिसाब से उन्होंने सब कुछ हमें दिखाया दिया। और परफ्यूम का फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छा है। हम लोगों ने ओरिजिनल डायरेक्ट जो ब्रांडेड परफ्यूम है वो नहीं लिया, उसका डुप्लीकेट जो मेकिंग करके वो लोग बना के देते हैं वो लिया। सब कुछ बहुत परफेक्ट था। अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट स्पॉट पे, तो चलिए जाते जाते देखते हैं कौन सा नेक्स्ट स्पॉट है। Now it was time to sail to the other side to Al Fahidi Historical Neighborhood, or just Al Sif. For that we boarded this 1 dirham Abra. To note that the silver Nol card works here. The sunset was amazing, the ride was short but charming. एज अ फर्स्ट इम्प्रेशन ये जगह काफ़ी यूनिक और सुंदर है। यहाँ एक मॉस्क भी है जो काफ़ी बड़ा और ख़ूबसूरत था। हमने वहाँ ज़्यादा फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक नहीं किया क्योंकि हम जब वहाँ थे वो रमज़ान का महीना चल रहा था और उस टाइम इफ्तारी की तैयारी वो लोग कर रहे थे। ये सब पुराना लैंप है, पुराना मतलब बहुत पुराना। आप लोगों को भी पता होगा किसके किसके घर में था, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। यहाँ पे केरोसिन डाला जाता था और इससे जो उसका लुई है अंदर का वो अप एंड डाउन किया जाता था। ये सब हम लोगों ने बचपन में देखा था अपने घरों में। Alright, so right now it's 7 p.m. By half an hour we have to reach out to our next spot. But the thing is, this part of Dubai you just cannot miss. It's so beautiful. Maybe you have got an idea from the video that you have seen, from the videos. And not only the Starbucks part, which is popular, but the whole part. It's a big market actually. That's what we came to know. And they have, like, there are public toilets also, so it's easy, convenient, and you can see at my back side. So they have done their part. So do not miss out on this thing. And right now we are going for the Dhau cruise experience. The boarding is like at 7:45. So just when we are buying perfumes in the perfume soup, that time they WhatsApp me with the details and the Google map also. So it's very convenient. They make sure that you don't get into any trouble. So by 7:30 we'll reach there. We'll just sit here for some time and then we'll go there and we'll show you, like, share the information with you. यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा है। तो अगर आपको बेस्ट सीट चाहिए या फिर आप कुछ सोच के आए हो तो आपको पहले ही जाना है और अपना सीट ले लेना है मेरी तरह, क्योंकि मुझे एकदम स्टार्टिंग में ही अपना सीट चाहिए था। तो चलिए आज डिनर में क्या क्या है देखते हैं। पहले था चिकन 65, उसके साथ था फ़िश, उसके बाद मिला हमें बटर चिकन और यहाँ पे हमें दिखा समोसा। तो उसके बाद था जीरा राइस
और यहाँ पे है वेजिटेबल कढ़ाई, दाल, स्पेगेटी, बहुत सारा ऑप्शन ऑलरेडी दिख गया था। और इस साइड पे था वेजिटेबल सॉटे और यहाँ पे फ्राइड पोटैटो या फिर रोस्टेड पोटैटो। यहाँ पे उन लोगों ने सलाद वगैरह सब कुछ रखा हुआ था जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा यमी लग रहा था। और पता नहीं ये क्या है, पर ये भी खूबसूरत ही दिख रहा था। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, फर्स्ट हम लोग आज गए थे मॉल, इबन बतूता मॉल। वहाँ पे आप लोग शॉपिंग करने के लिए जाओ वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मॉल में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक मस्ट विजिट प्लेस है, क्योंकि वो एक मॉल जैसा एक्सपीरियंस आपको नहीं देगा, वो एक पैलेस जैसा एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे मिलेगा, और वैसा एक्सपीरियंस आपको कहीं और पे शायद ना मिले। तो उसके बाद हम लोग गए गोल्ड सूक, स्पाइस सूक और परफ्यूम सूक पे। तो वहाँ पे हम लोगों ने पहले प्लान किया था कि हम लोग गोल्ड परचेस करें, लेकिन हमें अपने अकॉर्डिंग मिला नहीं। हमें कम वेट का चाहिए था, वहाँ पे सब कुछ ज़्यादा वेट का था। तो हम लोगों ने प्लान को सिंपली ड्रॉप किया। फिर हम लोग गए परफ्यूम सूक पे, जहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया था कि परफ्यूम परचेस करना है। तो उसके हिसाब से हमने परफ्यूम परचेस किया। दुकान वगैरह आप लोगों को दिखाया है। अगर आप लोग भी जाते हो और प्लान करते हो तो आप लोग भी वहाँ से ले सकते हो परफ्यूम। उसके बाद हम लोग गए ओल्ड दुबई, मतलब एक्चुअली वो पूरा ही ओल्ड दुबई ही है। फिर हम लोग बोट लेके गए, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत खूबसूरत सनसेट देखा बोट से। और आप लोगों ने देखा होगा स्टारबक्स, वो सबसे यूनिक स्टारबक्स है। तो वो तो अच्छा है, लेकिन उसका जो सराउंडिंग है, पूरा जो एरिया है, वो पूरा दुबई से अलग है। इसलिए आपको ये जगह भी विजिट करना चाहिए। और उसके बाद हम लोग गए धाव क्रूज। धाव क्रूज का खाना काफ़ी अच्छा था। बाकी वो लोग जैसे घुमाते 1 घंटा के लिए उन लोगों ने घुमाया, तो उसमें ऐसा कुछ खास नहीं था जो मतलब कुछ अलग हम लोग को दिख गया, तो वो मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा था। फर्स्ट टाइम हम लोग आए और पता नहीं नेक्स्ट कब आएंगे, तो ये एक्सपीरियंस भी हम लोगों ने किया। लेकिन खाना बहुत अच्छा था वहाँ पे, पूरा इंडियन के हिसाब से ही था। तो फिर इतना ही आज के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोगों को कुछ भी जानना है शेयर कीजिए, जिसके साथ भी आप दुबई आने का प्लान कर रहे हो। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि दुबई सीरीज़ अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और बहुत कुछ देखना अभी भी बाकी है। और उसके अलावा आप लोगों को कुछ भी देखना है, जहाँ जहाँ हम लोग गए, वो सब कुछ आपको हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। वो सभी आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट।